Good morning, student. So in previous video we already take some example, already took some example, कुछ example हमने लिए थे. तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ और ज्यादा example लेते, कुछ और example लेते हैं. ओके? तो इसमें यहाँ पे इसके पहले ये example solve करने के पहले मैं आपको एक थ्योरम थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा. And that theorem is if one pair of the opposite side is parallel and equal, then a quadrilateral is a parallelogram. Means quadrilateral में मान के चलेंगे this is of your quadrilateral and in this quadrilateral if one pair of the opposite side is parallel and equal, it means AB is parallel to CD and AB is equals to CD, then we say that this is a parallelogram. तो ये क्या बन जाएगा आपका parallelogram. Means if one pair of the opposite side is parallel and equal, then the quadrilateral is a parallelogram. अब ये थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. Now, what is the given information in triangle ABC and DEF? ABC, DEF, दो ट्राइंगल है यहाँ पर. AB is equals to DE. AB is equals to DE. Okay? And AB is parallel to DE दिया है. उसके बाद में BC is equals to EF. BC, this one is DEF. EF के साथ में इक्वल है और साथ में BC is parallel to EF है. हमने वर्टाइसेस ABC को ज्वाइन किया DEF के साथ, A को ज्वाइन किया D के साथ, B को ज्वाइन किया E के साथ में और C को ज्वाइन किया हमने F के साथ. ओके? Now we have to show that ABED is a parallelogram. तो वन बाय वन हम लोग देते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और वहां से जो आंसर्स आएंगे, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मींस यहां पे हम लोग दो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. पहला टेस्ट ऑफ द पैरेललोग्राम, उसमें if one pair of the opposite side is parallel and equal, then quadrilateral is a parallelogram. ये पहला. और दूसरा, if a quadrilateral is a parallelogram, then opposite sides are equal. If a quadrilateral is a parallelogram, then opposite sides are equal. Okay? Now, for the proof of first, पहले प्रूफ के लिए quadrilateral में कंसीडर करेंगे in quadrilateral ABED. ABED क्या दिख रहा है आपको? AB is equals to DE and AB is parallel to DE. दिख रहा है? One pair of the opposite side is equal and parallel, therefore quadrilateral ABED is a parallelogram. क्यों parallelogram? Because if one pair of opposite side is parallel and equal, then quadrilateral is a parallelogram. तो quadrilateral क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम. तो ABED क्या बन गया? पैरेललोग्राम. और जब ABED पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे. तो AB is parallel, AB is equals to DE तो ऑलरेडी है हमारे पास. तो बचा कौन सा पेयर? AD is equals to BE and AD is parallel to BE. Equation number 1. Okay? It is opposite sides of the parallelogram. तो एक पेयर तो पैरेलल और इक्वल थी पहले से, हमने पैरेललोग्राम शो करके दूसरी पेयर भी पैरेलल और इक्वल शो की है. इतना समझ गए? अब दूसरा, ये हो गया पहला आंसर. फर्स्ट आंसर कंप्लीटेड. नाउ फॉर द सेकेंड आंसर, फॉर द आंसर बी. इन क्वाड्रिलैटरल BEFC दिख रहा है आपको क्वाड्रिलैटरल. यहां पे क्या दिया है मेरे पास? BC is equals to EF. It is given information. BC is equals to EF and BC is parallel to EF. And BC is parallel to EF
therefore ये BC है आपका, BC is equals to EF and BC is parallel to EF, so one pair of the opposite side is equal and the parallel, therefore quadrilateral BEFC is a parallelogram. जो स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा है, if one pair of the opposite side is parallel and equal, then the quadrilateral is a parallelogram. यही स्टेटमेंट यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं, if one pair of the opposite side is parallel and equal, then the quadrilateral is a parallelogram. अब quadrilateral तो parallelogram आ गया आपका, इसका मतलब opposite sides are parallel and equal. कौन सा साइड लिया हमने? BEFC, तो उसमें BC और EF तो हो गया, यहीं पे है, तो बचा कौन? BE and CF. Therefore BE is equals to CF and BE is parallel to CF. इसको दिया मैंने सेकेंड. इतना समझ में आ गया? अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या दिखा रहा आपको? So from equation from 1 and 2, 1 and 2 क्या दिखा रहा है आपको? 1 और 2. 1 में हमने बोला BE is equals to AD और यहां पे बोला BE is equals to CF. यहां पे दोनों में B दिख रहा है, तो ये दोनों से क्या बोलेंगे हम लोग? B सेम है. It means that AD is equals to CF and AD is parallel to CF. क्यों? देखो, AD is equals to BE and BE is equals to CF. So naturally AD is equals to CF. AD is parallel to BE and BE is parallel to CF. तो पहला पैरेलल है दूसरे के साथ और दूसरा पैरेलल है तीसरे के साथ, तो पहला किसके साथ पैरेलल हो गया? तीसरे के साथ पैरेलल हो गया. Therefore AD is parallel to CF and AD is equals to CF. इसको देंगे हम लोग थर्ड. ये हो गया आपका आंसर नंबर 3. इतना समझ में आ गया? अब इधर लेंगे हम लोग. ओके, ये दोनों चीजें समझ में आ गई. नाउ सी द थर्ड वन. ओके, ये भी आ गया, ए भी हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया. अब देखेंगे क्वाड्रिलैटरल ACFD. सो इन क्वाड्रिलैटरल, आंसर नंबर डी, इन क्वाड्रिलैटरल ACFD, ACFD उसमें हमने शो किया है AD is equals to CF and AD is parallel to CF. कहां से लिखा हमने? From equation 3. AD is equals to CF and AD is parallel to CF. ये यहां पे लिख दिया. So one pair of the opposite side is parallel and equal. Therefore quadrilateral ACFD is a parallelogram. आ गया पैरेललोग्राम. अब ये पैरेललोग्राम है तो नेचुरली इसके अपोजिट साइड से पैरेलल एंड इक्वल, तो अपोजिट साइड में कौन सी साइड लेंगे हम लोग? AC is equals to DF and AC is parallel to DF. AC is equals to DF and AC is parallel to DF. तो पैरेलल की जरूरत नहीं है इसलिए हमने उसको नहीं लिया. तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला आंसर. इतना समझ में आ गया? अब लेंगे हम लोग दो ट्राइंगल. In triangle ABC and triangle DEF, क्योंकि हमने यहां तक तो पहुंच गए, फिफ्थ तक. अब हमको दोनों ट्राइंगल को शो करना है कॉन्ग्रुएंट. तो ABC और DEF लिया तो AB is equals to DE, ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन था. BC is equals to EF, this is also the given information. And the third one is AC is equals to DF, ये लिखा हमने from equation 4. Therefore triangle ABC is congruous to triangle DEF. तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई हुआ? Side, side, side. So by SSS test, these two triangles are congruent. Now previous question is also lengthy and this question is also lengthy. The number of the question from this exercise
8.1 are so lengthy but not difficult. Okay, difficult भी across the lengthy है मगर difficult नहीं है. अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग. देखो क्या दिया है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, पैरेलल दिया है, और AD is equals to BC. पहले वो ले लेते हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, और AD is equals to BC ये दिया है. शो दैट एंगल A is equals to B, A और B इक्वल दिखाने हैं. हम क्या करेंगे, जो AD है इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की. ओके, और AB को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो E पे इंटरसेक्ट किया. मींस व्हाट वी कंसीडर हियर, ड्रॉ AD पैरेलल्स टू CE. ओके, क्या किया हमने, AD किसको पैरेलल किया, CE को किया. क्लियर. अब यहां पर चेक करेंगे हम लोग, एज AB is equals to BC, इक्वेशन 1, दिस इज ऑफ योर गिवन. AD is equals to BC ये दिया हुआ है आपको, मगर हमने क्या किया, AD को CE से पैरेलल शो किया. गॉट इट. नाउ AB is parallel to DC and AD is parallel to CE, therefore quadrilateral ADCE is a parallelogram. आगे parallelogram. If the pair of the opposite sides are parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. अब ये parallelogram हो गया. Parallelogram हो गया मींस opposite sides कैसे रहेंगी, इक्वल. अपोजिट साइड में मैं ये ले सकता हूं AD is equals to CE, इक्वेशन नंबर 2. नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे. AD is equals to क्या लिया, CE, because ADCE is a parallelogram, and as ADCE is a parallelogram, then opposite sides are equal. Got it? So AD is equals to क्या बोला हमने, CE, इक्वेशन 2. So from 1 and 2, what we write here, AD सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, BC is equals to CE. अब BC is equals to CE है, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए आइसोस्केलेस ट्रायंगल से. ओके कि दोनों एंगल इक्वल. कौन से दो एंगल इक्वल हो गए, जरा चेक करेंगे हम लोग एक बार. एंगल CBE is equals to एंगल CEB, इक्वेशन नंबर 3, आइसोस्केलियस ट्रायंगल थ्योरम. ध्यान में आ गया, आइसोस्केलेस, इधर लिखता हूं ट्रायंगल थ्योरम. यहां तक ध्यान में आया आपको, यहां तक समझ में भी आ गया. ओके, नाउ व्हाट वी कंसीडर, एंगल A ले लिया प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180. E मींस कौन सा एंगल E, ये वाला, ये इधर वाला. So that is of equals to what, 180 degree. Why? Because they are interior angles. Why they are interior angles are supplementary? Because AD is parallel to CE and AE is a transversal. Therefore, the sum of these two angles is equals to 180 degree because they are interior angle. Therefore, angle A is equals to 180 minus एंगल E, इक्वेशन नंबर 4. इतना समझ गए आप लोग. अब आगे बढ़ेंगे हम लोग. ओके, मींस हमारे पास में आ गया इक्वेशन 4 में एंगल A का मेजरमेंट आ गया 180 माइनस एंगल E. नाउ कैन वी से दैट दीस टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर? यस, मींस एंगल CBA, that is CBA plus angle CBE is equals to 180 because they forming a linear pair. और जो linear pair form करते हैं उनका addition होता है 180 degree. Got it? Now the angle forming a linear pair is, तो यहां पे देखेंगे हम लोग एंगल CBA means this angle, okay, this one. तो इसको हम लिखते हैं सिंपल एंगल B. ओके, नाउ CBE means this angle X. तो CBE की जगह मैं एंगल E लिख सकता हूं, कहां से, इक्वेशन नंबर 3 से. CBE के जगह पे कौन सा एंगल लिखा मैंने, विच वन एंगल वी कंसीडर, एंगल CEB. CEB means कौन सा एंगल, एंगल E is equals to 180 डिग्री. देयरफॉर कहां से लिखा है,
from equation number 3. Understood? Therefore, angle B is equals to 180 minus angle E. इक्वेशन नंबर दिया यहां पे 4 के बाद में आ गया 5. नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 का वैल्यू क्या है 180 माइनस एंगल ई और 5 का वैल्यू क्या है 180 माइनस एंगल ई. देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड दिस इज प्रूफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन नंबर 6. ये हो गया पहला प्रूफ. क्लियर? इतना समझ गए? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग. Now, as AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, therefore angle A plus angle D is equals to 180 because they are the interior angles. They are the interior angles. Equation number दिया मैंने 7. Equation देते जाएंगे हम लोग, बार बार देते जाएंगे equation, जितना पॉसिबल है. उसके बाद में angle B plus angle C is also equals to 180 degree. Equation number 8. They are also the interior angle. So from equation 7 and 8, what we write here? Angle A plus angle D is equals to angle B plus angle C. Correct? Angle A plus D is equals to B plus C. अब हमने equation 6 में क्या बोला है? Angle A is equals to B बोला है. तो A का वैल्यू और B का वैल्यू सेम है. सो यहां पे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल C, और ये लिखा हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6. जहां पे B था वहां पे क्या लिख दिया? A लिख दिया. गॉट इट? जहां पे B है वहां पे क्या लिखा हमने? A लिखा. सो दिस A विल बी गेट कैंसल. एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C. दिस इज ऑफ इक्वेशन नंबर 9. ये क्लियर हो गया आपका? यानी हमारा ये भी हो गया C is congruent, C is equals to D. अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे? दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD. ओके, हियर आई विल ड्रॉ वन लाइन. ओके, क्लियर? फोकस करो इसको. तो यहां पे देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया? ABC एंड ट्राइंगल BAD. चलो दोनों ट्राइंगल को वहां पे ऑब्जर्व करेंगे हम लोग. ABC मींस कौन सा ट्राइंगल है वो देख लो. ABC, ये ट्राइंगल है ABC, ABC, ये वाला ट्राइंगल. दूसरा ट्राइंगल BAD, सेकेंड ट्राइंगल, ओ माय गॉड, दिस वन ABD. ओके, नाउ हियर BC इज इक्वल्स टू AD पहले से दिया हुआ है. एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, ये भी पहले से दिया है. और AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AB, कॉमन साइड होगी, ये भी दिया है. तो यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग. AD इज इक्वल्स टू, नहीं पहले कौन सा ये लेंगे ना, तो यहां पे लेना पड़ेगा BC. ओके, सो BC इज इक्वल्स टू AD. दिस इज गिवन. ये हो गया पहला. दूसरा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A, ये लिखा मैंने फ्रॉम 6. और तीसरा लेंगे AB इज इक्वल्स टू BA, ये लिखेंगे कॉमन साइड. देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD by SAS test. अब SAS टेस्ट से जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड इज व्हाट? AC is equals to BD. So in this way we prove the last one, AC is equals to BD, and in this way we complete the question.